आज डेट है 24th of March. Our D-Day is on 7th May 2023. That means around 44 days are left, which means 6 weeks and 2 days. And if I don't count the day of 6th and 7th, then it's only 42 days are left of preparation are left. Okay, now the problem is anxiety regarding the exam, time management and revision, as well as test series. In this video, I am going to give you a solution of all of them: revision, test series, anxiety, and time management. Hello and welcome to Jeev Vigyan. Ajay Mato this side. I hope you all are doing fine there. In this video, I am going to talk about all these. Let's start with anxiety. Anxiety. देखो, सबसे पहली बात ये क्या है? This is the fear of failure, right? This is the fear of failure. पहली बात, it's normal. अगर तुम्हारी, मैं एक चीज बता रहा हूं, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अप टू द नॉच है, तब भी आप लोगों को एंजाइटी और फियर ऑफ फेलियर होना नॉर्मल है. इट्स टोटली नॉर्मल. अगर हो भी रहा है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट, राइट? इवन अच्छा ही है. मैं बताता हूं क्यों. फियर ऑफ फेलियर जो है ना, फियर ऑफ फेलियर विल पुश यू टू वर्क हार्ड. ठीक है, विल पुश यू टू वर्क इवन हार्ड. ठीक है, बट अप टू अ लिमिट. ठीक है, इस एंजाइटी को यानी कि फियर ऑफ फेलियर को होने देना है, बट अप टू अ लिमिट. दैट लिमिट शुड बी ऑप्टिमम. ठीक है, इफ दिस एंजाइटी level is rising like this, then this is normal, totally normal. ठीक है, this is the optimum level. Beyond this, एक लेवल के बाद अगर आप यही सोचते रहोगे fear of failure, then it is not going to worth it. Fine. तो optimum level तक anxiety ठीक है. ठीक है, द फियर ऑफ फेलियर ठीक है, दैट विल पुश यू टू वर्क हार्ड. फाइन. ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ये तो प्रॉब्लम हो गया. इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज, फर्स्ट थिंग, इमेजिन द वर्स्ट केस सिनेरियो. इमेजिन द वर्स्ट case scenario. What is going to happen if you don't crack this exam? Plan on a sheet. एक शीट पर प्लान करो कि अगर ये एग्जाम क्लियर नहीं होता, then what you are going to do. ठीक है, you are going to reappear the exam or other option and whatever it is, plan on a sheet. एक शीट में प्लान कर लो. ठीक है, इफ नॉट देन व्हाट, राइट? 90% मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आपने ये काम कर दिया ना, बस इतना सा,
90% anxiety will be caused here. 90% anxiety will be caused there. Fine, 90% anxiety. ठीक है, मैं मान रहा हूं दिस एग्जाम इज अनसर्टेन. हमें नहीं पता कौन से क्वेश्चन आएंगे, राइट? यस, दिस एग्जाम इज अनसर्टेन. यस, you might fail. We know failure is the part of life, so you might fail, no wonder. But one thing you should know, that many things are beyond control. कई सारी चीजें हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते. But one thing that is in your control is the hard work that will be given by you. और इसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं. समझ पा रहे हैं? अभी तक हमने बात की एंजाइटी, विच इज द फियर ऑफ फेलियर, एंड इट्स नॉर्मल. ठीक है, फियर ऑफ फेलियर आपको पुश करेगा हार्ड वर्क करने के लिए, बट अप टू अ लिमिट. ठीक है, अप टू अ लिमिट. वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करना है अपने को. ठीक है, और उसको वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? यू विल नॉट क्रैक द एग्जाम, दैट्स इट. प्लान ऑन अ शीट कि अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो व्हाट वी विल डू. Yes, this exam is uncertain. Yes, you might fail. Yes, many things are beyond control. But what is in control? Hard work is in our control. Fine. Hard work is in our control. और hard work का कोई substitute नहीं है. Praditya Samutpad, theory of, what is this? This is theory of dependent origination. This is theory of dependent origination. Means if you do hard work, you will get result. If you do hard work, you will get result. No matter when, but you will get the result. Fine, you will get the result. अभी नहीं, बाद में, but you will get the result. Okay. Now let's come to time management, revision and test series. Fine. अब देखो, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा. You have put on various amount of efforts in this year. आप लोगों ने पढ़ा है, चैप्टर तो पढ़ा ही है. फाइन, चैप्टर आप लोगों ने पढ़े हैं, but the thing is you have to revise them. Right, you have to revise them, and for that some amount of pressure is required. Right, not that level of pressure आप अपने mind में create होने दो. Right, that will give you again, push you to work hard, but it is again going to be of optimum level तक तो चलेगा अपने को. ठीक है, now let's talk something practical. अब ये तो मैंने बातें की, अब कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं कि भाई हाउ पार्ट पर आते हैं. ठीक है, हाउ पार्ट पे आते हैं कि कैसे क्या करना है अपने को. डिवीजन, सब डिवीजन करना है चीज़ों का. फाइन, सब डिवीजन करना है चीज़ों का. आप लोगों को हर वीक में आधा सिलेबस रिवाइज करना है. समझ गए आप? हर वीक आपको आधा सिलेबस रिवाइज करना है. 5 दिन. ठीक है, 5 दिन. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट करते हैं कब से? जैसे फॉर एग्जांपल आज 24 है, मैं 24 और 25 जो है वो काउंट नहीं कर रहा. फॉर एग्जांपल आपके पास है ये, ठीक है, 26 भी काउंट नहीं कर रहा. आप इसमें अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन. ठीक है, रिवीजन 27, 28 एंड 29, 30, 31. ये कितने दिन हो गए? दीज आर 5 days. ठीक है, दीज आर 5 days. इन 5 दिनों में सब डिवीजन देखो क्या है. इन 5 दिनों में मुझे क्या करना है? आधा सिलेबस रिवाइज करना है. कुछ नहीं, आधा सिलेबस रिवाइज करना है. मतलब कि हाफ सिलेबस
हाफ सिलेबस ऑफ 11th क्लास, दैट्स इट। हाफ सिलेबस ऑफ 11th क्लास। जब मैं बोल रहा हूं हाफ सिलेबस ऑफ 11th क्लास तो मेरा मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायो, विच इंक्लूड्स ऑब्वियसली बॉटनी एंड zoology, राइट। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक। अब आप क्या कर सकते हैं कि इन डेज को भी डिवाइड कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 27 और 28 को मैं फिजिक्स पढ़ने वाला हूं, या 29 और 30 को केमिस्ट्री कर लेंगे, 31 को 31 को बायो देख लेंगे। आधा सिलेबस है 11th का, एक दिन अगर हम देंगे तो हो जाएगा। या फिर देर इज अनदर पॉसिबल, दैट इज अप टू यू। आप लोगों को सोचना है कि कैसे आपको करना है, आपको जैसा सूट करता है यू आर गोइंग टू डू दैट। बट हमारा एम क्या है, बाय द इवनिंग बाय द इवनिंग ऑफ 31st मार्च, बाय द इवनिंग ऑफ 31st मार्च हम लोगों का हाफ सिलेबस 11th क्लास का रिवाइज हो जाना चाहिए। जब मैं बोल रहा हूँ रिवीजन, तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर हमारे सारे जो नोट्स पूरे साल में हम लोगों ने बनाए हैं वो रिवाइज करना है, एनसीईआरटी रिवाइज करनी है, प्लस एक और चीज़ जो नहीं करनी है वो ये कि बहुत ज़्यादा एम्पल अमाउंट में, ठीक है, नोट्स नहीं बनाने हैं। अब नोट्स बना के करोगे क्या, है ना। तो जो नोट्स आप लोगों ने बनाए हैं, जो एनसीईआरटी है आप लोगों के पास, उन्हीं को रिवाइज करना है। प्लस जो चीज़ नहीं छोड़नी है विच इज पीवाईक्यूज नहीं छोड़ने हैं, समझ रहे हो। पीवाईक्यूज शॉर्ट पीवाईक्यूज करके ही आना है, समझ गए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 5 दिन है। बाय द इवनिंग ऑफ 31st मार्च आप लोगों का हाफ सिलेबस जो है 11th क्लास का हो जाना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स में 9 चैप्टर्स, ठीक है, और केमिस्ट्री में 9 चैप्टर्स एंड बायो में 9 चैप्टर्स, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। आई गिव यू द लिस्ट ऑफ चैप्टर्स दैट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, ठीक है, इन द ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोगों को सब मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 अप्रैल को आपको टेस्ट देना है, और 1 अप्रैल को हमारा टेस्ट इसी हिसाब से डिज़ाइन किया है हम लोगों ने। तो 1 अप्रैल को आप लोगों को टेस्ट देना है विच इज ऑफ हाफ 11th सिलेबस, ठीक है, हाफ 11th सिलेबस, और विच इज टेस्ट 1, फाइन, टेस्ट 1। अब एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम लोग ये टेस्ट प्रिपेयर कर रहे होंगे तो हमें ये ध्यान रख के टेस्ट प्रिपेयर करना है कि आगे मुझे फुल लेंथ टेस्ट भी देने हैं, राइट। आगे मुझे फुल लेंथ टेस्ट भी देने हैं। अब क्योंकि मुझे आगे फुल लेंथ टेस्ट देने हैं तो हो सकता है आगे मुझे इतना टाइम ना मिले प्रिपेयर करने के लिए, फाइन। हो सकता है कि आगे मुझे इतना टाइम ना मिले प्रिपेयर करने के लिए। तो क्योंकि मुझे आगे इतना टाइम नहीं मिलने वाला है प्रिपेयर करने के लिए, तो व्हाट आई एम सपोज टू डू इज कि भाई अभी से ही वो प्रिपरेशन करके रखूँ ना, समझ रहे हो। जब आगे मुझे टाइम नहीं मिलने वाला है तो वो प्रिपरेशन मेरी कब होनी चाहिए, अभी से हो जानी चाहिए, फाइन। अब क्या है, हाफ सिलेबस ऑफ 11th इज डन, टेस्ट 1 इज डन, ठीक है। इस टेस्ट में मुझे एम करना है कि भाई जो भी मैंने पढ़ा है, ठीक है, अच्छे मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। एम इज अच्छे मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। इतना तो है कि अगर आप पढ़ेंगे और आपने पूरे साल पढ़ा है देन टेस्ट 1 इज गोइंग फेल। अब अगेन 5 days for half left syllabus of 11th, fine, half left syllabus of 11th which is going to test 2। प्रिपरेशन वैसे ही करनी है, ठीक है। ये टेस्ट होगा आप लोगों का 7th अप्रैल। फर्स्ट टेस्ट इज
1 अप्रैल, सेकेंड टेस्ट 7 अप्रैल, फाइन। देन अब आप लोग बाय द एम्पल ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम आप लोगों ने अराउंड 2 हफ्ते दिए हैं, और इन 2 हफ्तों में आप लोगों ने पूरा 11th का सिलेबस आई होप ढंग से किया है। अब मैं इसलिए आपको बोल रहा था कि ये जब टाइम आपको मिल रहा है कि हर चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करने का, उस समय पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अब मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है अपने आप को, सिर्फ एक दिन का टाइम, 8 को ब्रेक, आज ब्रेक मतलब प्रिपरेशन टाइम, ठीक है, ब्रेक मतलब ब्रेक नहीं है। 8 को हम लोग कोई टेस्ट नहीं रखेंगे। 9 को 9th of April विच इज संडे, राइट, 9th of April विच इज संडे, 9th April को हम लोगों का टेस्ट 3 होगा विच इज ऑफ कंप्लीट 11th, फाइन, कंप्लीट 11th। और उसके बाद फिर 5 डेज, ठीक, 5 डेज, और इन 5 डेज में हम लोगों को अगेन क्या प्रिपेयर करना है, हाफ सिलेबस ऑफ अब क्लास 12th, ठीक है। दिस वुड बी योर टेस्ट 4, ठीक है, और वो टेस्ट कब होगा, 15th of April, ठीक है। चलो फिर अगेन वी आर गोइंग टू गिव अस 5 डेज एंड what we are going to prepare, left half syllabus of class 12th, फाइन। और ये टेस्ट कब होगा, 21st of April which is the test 5. now again, अब क्योंकि आप लोगों ने 10 दिन दिए हैं पूरे 12th को रिवाइज करने के लिए, तो मैं मानकर, और आप एक एक टेस्ट हाफ करके टेस्ट दे भी चुके हैं, देन आई विल गिव यू अगेन 1 day to prepare all these complete syllabus, and on 23rd is going to test 6 which is of complete 12th, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट का मतलब क्या है, कंप्लीट सिलेबस 12th, फाइन। अब देखो क्या है, 2 दिन का ब्रेक का मतलब अगेन प्रिपरेशन, ठीक है। आप लोग 11th पूरा पढ़ चुके हैं, हाफ टेस्ट दिया 11th, हाफ टेस्ट दिया 12th, फिर फुल सिलेबस दिया, ठीक है। आप लोगों को प्रिपरेशन इस हिसाब से करनी है कि ये मत करना कि भाई आगे तो मुझे टेस्ट देने ही है तो आगे उस समय प्रिपरेशन कर दूंगा, बाद के लिए चीज़ों को मत डालो, कंपाइल हो जाएंगे, और कंपाइल करते करते 1 साल हो गया, बाद में चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। वी हैव टू प्लान फ्रॉम हेयर टूवर्ड्स द फ्यूचर। तो आप लोगों को क्या करना है कि भाई यहीं से वो तैयारी करके चलनी है कि आगे मुझे एक ही दिन में पूरा 11th का सिलेबस करना पड़ेगा रिवाइज। तो जब एक ही दिन होगा मेरे पास और पूरा 11th सिलेबस करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से अभी से पढ़ के चलना है, समझ आया, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, अगेन 24th है आपके पास अप्रैल, 25 है आपके पास अप्रैल, इनमें हम कोई टेस्ट नहीं ले रहे हैं, दीज आर 2 days ब्रेक। मतलब इनमें आप प्रिपेयर करो, उन चीज़ों को देखो जो आप, जहाँ पर आप गलती कर रहे थे, उन चीज़ों को देखो जो आपके वीक कॉन्सेप्ट्स हैं, या रिवाइज करो अगेन दोबारा, पूरा सिलेबस रिवाइज करो। 2 दिन है आप लोगों के पास, 24-25 अप्रैल। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे फुल लेंथ टेस्ट, रेगुलर, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट विच इज गोइंग टू टेस्ट 7। घर पे जाओ, प्रिपेयर करो, ठीक है, और फिर आओ 2 से 5। टाइम क्या होगा, 2 PM, सभी टेस्ट का टाइम
2 PM to 5 PM होने वाला है। फुल लेंथ टेस्ट 1, फुल लेंथ टेस्ट 2, फुल लेंथ टेस्ट 3, ठीक है, एंड सो ऑन। 3 फुल लेंथ टेस्ट 4, फुल लेंथ टेस्ट 5, full length test 6, full length test 7, 8, 9। फाइन। 9 आप लोग डेली आप लोग क्या कर रहे हैं कि इसी टाइम पर जब आप लोग टेस्ट दे रहे होगे, और एक्चुअली उसी कंडीशन में टेस्ट देना है जिस कंडीशन में आप लोग एग्जाम में बैठोगे, ठीक है, इसी टाइम पर ऐसा मान के चलना है कि आप लोग एग्जाम में बैठे हैं। सेम सीरियसनेस के साथ 3 घंटे बैठो, ठीक है। टेस्ट जब हम देंगे तो वो टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, इस पर मैं थोड़ा सा बात करूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ और मैं बात करना चाहूँगा कि जब पेपर, उसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब हम पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, राइट। पेपर अटेम्प्ट करने में नर्वसनेस में क्या हो जाता है, कई बार कई सारी चीज़ें छूट जाती हैं। देन विल डू दैट। अब आप देखो यहाँ पर क्या हो चुके हैं, 9 फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, ज़्यादा बर्डन नहीं लिया हम लोगों ने, रिवीजन का प्रॉपर टाइम दिया है, ठीक है, और कंप्लीट सिलेबस। जब आप लोग 9 फुल लेंथ टेस्ट देने की आप लोगों को आदत ऑलरेडी हो जाएगी ना, ठीक है, 9 आई थिंक इतने सब, ठीक है, इतने हो गए हैं कि 9 टेस्ट 10 टेस्ट दे चुके हो आप लोग, ठीक है, दैट मीन्स यू आर रेडी, ठीक है। अब आप लोग जब 6 तारीख को हम ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है, और ठीक है, कोई टेस्ट नहीं देना उस दिन, टाइम दो प्रॉपर अपना, ठीक है, और 7 को पेपर, ठीक है, 7 को तो पेपर है ही, बस 7th में इज आवर डी डे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको प्रिपेयर करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, विल सी यू इन द टेस्ट सीरीज।